دریا کے کنارے تک پہنچتے ہوئے میں تھک کر چور ہو چکا تھا۔ میں کچھ دیر تک اپنی سانس بحال کرتا رہا۔ ہم سے پہلے ہی وسیم کھوکھر کے ساتھ جسپال وہاں پہنچ گیا تھا۔ انہیں جلدی اٹھاؤ اور قریب ہی ریسٹ ہاؤس ہے، وہاں چلتے ہیں۔ وسیم کھوکھر کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے اٹھنے میں پتہ نہیں کس نے مدد دی۔ جلد ہی میں پانی میں بھیگا ہوا گاڑی کے سیٹ پر جا بیٹھا۔ میں نے سیٹ سے ٹیک لگائی تو گاڑی چل پڑی۔ ریسٹ ہاؤس میں کپڑے بدلنے کے بعد میں اور جسپال لاؤنج میں آ گئے تو رانا عارف اقبال وہیں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس اجنبی کو وہیں لے آیا گیا تھا۔ اس کے کپڑے بھی بدلوا دیے گئے تھے۔ اسے قالین پر بٹھا دیا گیا اور اس کے پاس جنید بیٹھ گیا۔ مان لیا کہ تو بہادر ہے، جی دار ہے، اپنی جان پر کھیل سکتا ہے، لیکن شاید تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہارا واسطہ کن لوگوں سے پڑنے والا ہے، میں نے کہا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر سے پوچھا، ہاں تو اب یہ بتاؤ پہلے تمہارا نام کیا ہے؟ کسی بھی نام سے پکار لو، نام میں کیا رکھا ہے؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا تو میں مسکرا دیا۔ تبھی جنید نے اس کے بال پکڑ کر جھنجھوڑنا چاہا تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ نہیں جنید، اسے اس وقت کچھ نہیں کہنا، جب تکیہ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیتا۔ ہاں اگر ہر درمی کی تو پھر یہ اس کی روح تک بولے گی ہمارے سامنے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس نے آنکھیں چرا لی، جیسے مجھے کہہ رہا ہو کہ تم جو چاہو کر لو۔ تب میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، چلو تمہارا کوئی نام بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مگر یہ تو بتا سکتے ہو تمہیں کس نے ہمارے پیچھے لگایا؟ میں یہاں کے کام کا خود ذمہ دار ہوں، میں جو چاہے سو کروں، اسے دھیمے سے لہجے میں بتایا۔ تو میں نے پوچھا، ہم نے تمہیں کیا نقصان؟ نہیں، تم ہماری راہ کی رکاوٹ ہو۔ میں نے تمہیں بتایا بھی ہے، اسے تیز لہجے میں کہا۔ کیسی رکاوٹ؟ میں نے پوچھا۔ تم مجھے مار بھی دو نا تو میں نہیں بتاؤں گا۔ ہاں ہمارے لیے کام کرو، جو چاہو وہی ہوگا۔ تمہاری یہ بکواس تو میں نے پہلے بھی سن لی ہے۔ کیا کام لینا چاہتے ہو مجھ سے؟ انقلاب۔ ہم اس ملک میں ایسا انقلاب لانا چاہتے ہیں جس میں ہر انسان کو اس کا بنیادی حق ملے، کسی بھی قسم کا کوئی جبر نہ ہو۔ اس نے انتہائی درد مندی سے کہا۔ کیوں؟ تم ہی ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ طنزیہ انداز میں بولا، یہی سوال اگر میں تم سے کروں کہ تم کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو، کس لیے؟ میری یہ مٹی ہے، میں اس وطن کا باسی ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کا وہی کام کروں جو اس وطن کو بنانے کے لیے ہے، جو اس وطن کو بنانے کی وجہ بھی ہے۔ میں نے کہا، کس نے دی ہے تمہیں یہ ذمہ داری؟ اس نے پھر اسی لہجے میں کہا، تمہیں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور مجھے کس ٹریک پر لے کر آنا چاہتا ہے، میرے وطن نے۔ میں نے کہا، تو میں بھی اسی مٹی سے ہوں، یہ بھی میرا وطن ہے، میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں یہاں کے انسانوں کے لیے کام کروں۔ بتاؤ مجھے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، اپنے ضمیر کو حاضر ناظر جان کر کہو، کیا یہاں کی انسانیت سسک نہیں رہی؟ کیا یہاں پر انصاف ہے؟ کیا یہاں کے سیاستدان کرپٹ نہیں ہیں؟ کیا یہاں کی عوام کو بنیادی سہولیات میسر ہیں؟ جس عوام سے جتنا ٹیکس لیا جاتا ہے اتنا اسے سہولت دی جاتی ہے۔ کیا ٹیکس لیتے ہوئے یہاں کے حکمرانوں کو شرم نہیں آتی کہ جاگیرداری نظام نے اس پارلیمنٹ کو یرغمال نہیں بنا رکھا؟ ایک فہرست ہے جسے گنواتے میں تھک جاؤں گا، مگر کسی بندے کو شرم نہیں آئے گی کہ وہ اس ملک میں رہتے ہوئے، یہیں کا کھاتے ہوئے اسی عوام کے ساتھ ظلم کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایسا ہونا چاہیے۔ جس ملک کی عوام کو شعور نہیں، جو اپنا برا بلا خود نہیں جانتے، جو ظلم سہتے ہیں لیکن آواز بلند نہیں کرتے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور تیرے جیسے وطن پرست آنکھیں بند کر کے غیر ملکی قوتوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں، اپنی عوام پر ظلم کر کے اس ملک کو مضبوط کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ملک نہیں، یہاں کے حکمرانوں کو مضبوط کر رہے ہو، ان کی دولت میں اضافے کا باعث بن رہے ہو۔ اس نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا تو ایک لمحے کو میں اس کی باتوں میں آ گیا، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ کیا یہ سب تم اکیلے کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔
نہیں، میرے ساتھ پوری دنیا کے لوگ ہیں، ہر ملک میں کام ہو رہا ہے، یہاں تبھی ہو رہا ہے۔ جس دن اس عوام کو شعور مل گیا، یہ تیرے سارے حکمران نہیں رہیں گے، عوام کی حکومت ہوگی، جمہوریت ہوگی صحیح معنوں میں، جسے جمہوریت کہتے ہیں۔ اس نے کہا تو میں ہنس گیا اور اسے کہا، بہت جذباتی باتیں کر لی تو نے بیٹا، اب اگر سچ نہیں بتاؤ گے تو میں خود پتا کر لوں گا۔ یہی سچ ہے، اس نے ہردرمی سے کہا تو میں نے جنید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسے فورسز کے حوالے کر دو، اس سے اب لاہور ہی میں باتیں ہوں گی۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا جمال، میری جگہ اور آ جائے گا، اس نے اونچی آواز میں کہا، اور جڑ ہی ختم کروں گا اب باتیں وہی ہوں گی، چلو۔ یہ کہہ کر میں اٹھنے لگا تو رانا عارف نے کہا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ اسے وہاں تک پہنچا دوں، اب یہاں بھی سب دیکھنا ہوگا۔ جنید اسے لے کر باہر چلا گیا جہاں اسے وصول کرنے کے لیے لوگ آ چکے تھے۔ چائے پینے کے بعد ہم وہاں سے چل پڑے۔ اسی وقت سورج طلوع ہو رہا تھا جب ہم ہیڈ ملالہ کا پل پار کر رہے تھے۔ میں ان مناظر سے لطف اندوز ہونا چاہ رہا تھا، اس لیے جنید کو گاڑی آہستہ چلانے کو کہا۔ وہ دھیمی رفتار سے جا رہا تھا۔ پل ختم ہو گیا تو میں نے دیکھا سفید کرتے اور تہمد میں ایک بزرگ سا بندہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سارا عصا تھا۔ اس نے سفید چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ ہمیں رکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں جنید کو گاڑی روکنے کو کہا، وہ رک گیا۔ میں نیچے اترا تو اس نے مسافے کے لیے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ الیک سلیک کے بعد میں نے کہا، جی بزرگو فرمائیں۔ یار ہمارے علاقے میں آئے ہو اور ہمیں ملے بنا ہی جا رہے ہو، آؤ ادھر بیٹھے۔ اس نے دریا کنارے پڑے بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں اس جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ ان کے بدن سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ ہم دونوں بینچ پر بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ تب میں حیران رہ گیا، یہ وہی بزرگ تھے جن سے میں شاہ جمال لاہور میں ملا تھا۔ وہ میری جانب دیکھ کے مسکرانے لگے۔ میں نے بے ساختہ کہا، بابا جی آپ؟ یار اگر پھر سے ملاقات ہو ہی گئی ہے تو اس میں یہ حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ مل گئے، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تو وہ بولے، کچھ باتیں ہیں جو تم سے کہنا تھی، وہ لے لو، سمجھ لو، تیری امانت ہے میرے پاس۔ جی فرمائیں۔ میں ہمتن گوش ہوتے ہوئے بولا تو وہ میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے بولے، انسان عشق سے آگاہی کے بعد جب اپنے وطن میں اترتا ہے تو جان بھی شکستہ ہو جاتی ہے، جس سے دل ظاہر ہوتا ہے، جو جان سے انتہائی اعلیٰ اور بلند ہے، جو جان کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ پھر جب دل شکستہ ہوتا ہے تو اندر کے نور اور انوار سے محکم ہو کر فتح نور سے جانو جسم کو تسخیر کر کے جانو جسم کو حق سے بناتا ہے، عالم کو اپنی مرضی سے تعمیر کرتا ہے، جس سے ایک مومن کی صورت جنم لیتی ہے۔ مومن کائنات میں رب تعالیٰ کی مرضی ہوتا ہے، اس میں رب تعالیٰ کی مرضی نظر آتی ہے اور اس کی مرضی رب تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ شکستگی کے بعد ہی تو تعمیر ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ اسی جذب سے کہنے لگے، وہ چہار عناصر جن سے زندگی کا مادی وجود ظاہر ہوا ہے، وہی چہار عناصر اس کی مخالف قوتیں تھیں، وہی قبضے میں آ کر کارآمد ہو جاتی ہیں۔ آگ جو دشمن تھی اسے قبضے میں کر کر اس سے فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ جی بجا فرمایا، یعنی آگ گلزار بن جاتی ہے۔ تیل اور گیس اس کی واضح مثال ہے۔ میں نے اسے اپنے طور پر کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے بولے، جب مادی سوچ اس کی اندرونی انسانی سوچ کو بند کر دیتی ہے تو درد مندی، سوز و گداز، نرمی کی جگہ سختی آ جاتی ہے، جبکہ انسانی فکر و سوچ ان بندشوں کو توڑ کر اس میں احساس، ہمدردی اور ہمت پیدا کر دیتی ہے۔ مادی جسم شکستہ ہوگا تو عالم صورت ظاہر ہوگی، عالم صورت شکستہ ہوگی تو دل ظاہر ہوگا، دل کے شکستہ ہونے سے عالم دل ظاہر ہوتا ہے، تبھی دل کے اندر دیدار ہوتا ہے۔ مادی جسم کی شکستگی سے زندگی برقرار رہتی ہے۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا، مادی جسم ظاہر ہے، جو چہار عناصر ہیں ان کو تصویر زندگی نے محیط کیا ہوا ہے، ان چہار عناصر کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ جب بڑی قوت ظاہر ہوتی ہے تو چھوٹی قوت شکستہ ہو جاتی ہے اور اسے اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔
मादी वजूद ज़ाहिर और जिंदगी इसमें छुपी हुई है। इसका अक्स जिस्म से ज़ाहिर है, जो धड़कन और रगों की हरकतों अमल से ज़ाहिर है। जिस्म अपने आप को जिंदगी में से देख रहा है, जिंदगी अपने मादी जिस्म से अपने अमाल को देख रही है, क्योंकि जिंदगी में फिक्र नजर में मादी जिस्म ज़ाहिर है, जिस्म ज़ाहिर है और जिस्मानी अमाल और सोच ज़ाहिर हो रहे हैं। जिंदगी चूंकि खुद को नहीं देख रही है, अपनी कुव्वतों का इदराक नहीं है, इसलिए खुद को जिस्म की कैद में देख रही है। उसने मादी जिस्म को अपना होना समझ रखा है। हालांकि मादी जिस्म की हरकत जिंदगी से है, क्योंकि बवक्त मौत जिस्म मादी बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ होता है। जब जिस्म का ताल्लुक जान से होता है तो जिस्म भी जिंदा होता है। मुर्दा दिल की निस्बत जब जिंदा दिल से हो जाती है, वो भी जिंदा हो जाता है। यूं जो हरकत है वो खुद को मजबूर समझ रही है, और जो बेहरकत है इसे खुद पर मुसल्लत किए हुए है, क्योंकि उसकी खुद अपने आप पर नजर नहीं है। जिस्म उसके लिए कोहे गिरा नजर आता है। हालांकि जिंदगी की कुव्वत के आगे मादी जिस्म की कोई वक़्त नहीं। और ये जिंदगी, मैंने कहना चाहा तो वो बोले, जिंदगी कायनात को देख रही है, उसे समझ रही है। जिंदगी जो खुद मादी वजूद का बातिन है, अपने आप को नहीं देख रही। हालांकि ज़ात पाक ने इंसान को अंदर देखने की सलाहियतों से भी नवाजा है। ज़ाहिर को देखने की सलाहियत रखता है और मादी जिस्म से आगे बातिन में देखने की सलाहियत रखता है, जिसे आम इंसान बेखबर है। इसकी खबर किसी खबरदार से लेकर जिंदगी को देखना है तो वो तेरे अंदर है, अंदर देख। जब इंसान की नजर अपनी जिंदगी पर जाती है तो फिर ये इंसान समझता है कि कायनाते जिस्म मादी इसका एक जुज है। जिंदगी की कुव्वत, अमाल और फिक्र जाहिर होते हैं। जब उसकी निगाह जिंदगी पर पड़ती है तो उसका मादी जिस्म शिकस्ता हो जाता है, क्योंकि जान सूरत है जिसमें तमाम आलम की सूरतें पड़ी हैं। इस नक्श से तमाम नकूश जाहिर हो रहे हैं और छुप रहे हैं। जाहिर में हरकत करता हुआ मादी जिस्म नजर आता है। जब जिंदगी पे निगाह जाती है तो फिर जिंदगी हरकत करती नजर आती है। वो जैसे कलंदर लाहौरी ने कहा था, जब जिस बदल गई तो ये जहां भी बदल गया। सुकून, हरकत, कैफियत और कैमियत किस तरह और कैसे भी बदल गई। ये कहकर वो खामोश हो गए, जैसे कुछ सोच रहे हों। और फिर उसी जज़ब में ये शेर पढ़ने लगे, हदीसे दिल किसी दरवेशे बेकलीम से पूछ, खुदा करे तुझे तेरे मकाम से आगा। गर्दिश माहो सितारा की है नागवार उसे, दिल आप अपनी शामो सहर का है नक्शबंद। परवरिश दिल की अगर मद्दे नजर है तुझको, मर्दे मोमिन की निगाह गलत अंदाज है बस। और सुन, दिल के रास्ते से रोकने वाला कौन है, उसे पहचान। बदल के बेस आ जाते हैं हर जमाने में। अगरचे बैर है आदम, जवां है लातो मनात, वो एक सजदा जिसे तू गुराह समझता है। बेजार सजदों से आदमी को देता है निजात। सुनो, इंसान खुदा का भेद है, अशरफुल महलूकात है। खुद को देख ले, खुद को पहचान ले और खुद को पा ले। खुद से बेगाना ना हो, खुद का महरम हो, खुद का इनकार ना कर, खुद को मान ले। तू सच है, सच को जाहिर कर दे। कायनात का वजूद इंसान है, और कायनात की जान इंसान की जान है। कायनात की जान इंसान है। ये कहते हुए वो एकदम से उठ गए, जैसे मुझे पहचानते ही ना हो। वो पुल की जानिब बढ़ गए। मैं उन्हें उस वक्त तक देखता रहा जब तक वो निगाहों से ओझल नहीं हो गए। मैं आहिस्ता कदमों से गाड़ी में जा बैठा तो जुनैद ने गियर लगा दिया। हम लाहौर की तरफ जा रहे थे। नया पैराग्राफ। मैं और जसपाल मॉडल टाउन वाले घर की छत पर बैठे चाय पी रहे थे। काफी देर तक उस अजनबी के बारे में बातें करते रहने के बाद वो अपनी बातें करता रहा। हम देर तक दोनों मुल्कों में होने वाली जेर जमीन कार्रवाइयों पर बात करते रहे। उसने जिस हद तक समझा वो कहता रहा। वो काफी हद तक मायूस हो चुका था। उसका हालिस्तान वाला वो हाब कहीं बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। सिख कम्युनिटी वाज़िया तौर पर दो धड़ों में बढ़ चुकी थी।
आम सिख डरा और सहमा हुआ है। नौजवान नस्ल को कहीं का कहीं भटका दिया गया है। मगर मेरा उसे ये कहना था कि नहीं, आग चाहे बुझ जाए, अगर धुआं उठ रहा है तो उसमें चिंगारी जरूर मौजूद होती है। ये बहुत जल्द भड़कने वाली है। हम यही बातें कर रहे थे कि जुनैद मेरा नया फोन लेकर आ गया। पहला फोन दरिया जनाब की नजर हो गया था। वो फोन बज रहा था। मैंने स्क्रीन पर निगाह डाली, सोहनी का फोन था। मैं इसीलिए फोन लेकर भागा आया हूं कि आपकी हुकूमत का फोन है। जुनैद ने शरारत से कहा तो मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कॉल रिसीव की। फोन क्यों बंद था? सोहनी ने गुस्से और तशवीश से पूछा तो मैंने कहा, ये एक लंबी कहानी है, आकर सुनाऊंगा। कब आना है? और बताने से पहले सोच लेना कि तानी की शादी है। वो तेजी से बोला। मैंने कब इनकार किया है? बस ये जसपाल से बातें कर रहा था। बस निकलते हैं कुछ देर बाद नूरनगर के लिए। मैंने कहा, ये बातें यहां आकर भी हो सकती हैं। उसने गुस्से में कहा और फोन बंद कर दिया। जसपाल मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। तभी मैंने बताया, वो बुला रही है, चलो फिर चलते हैं। उसने पहलू बदलते हुए कहा। तो मैंने जुनैद से चलने को कहा। वो पलट गया तो हम भी छत से लाउंज में आ गए। उन्हीं लम्हात में तारिक नजीर का फोन आ गया। कहाँ हैं आप? मुझे आपसे बेहद जरूरी मिलना है। कोई खास बात? मैंने पूछा। मैं आपसे मिलकर बताता हूँ, उसे तेजी से कहा तो मैंने उसे आने का कह दिया। अब मुझे उसका इंतजार करना था। आधे घंटे से भी कम वक्त में वो आन पहुंचा। उसके साथ एक फर्मा बाइल नफीस शख्सियत वाला एक उधेड़ उम्र शख्स था। वो बड़ी मतानत के साथ मुझे मिला। मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया। हम बैठ के तो तारिक नजीर ने कहा, मैं माजरत हाँ हूं कि मैंने फरजंद अली साहब की आमद के बारे में नहीं बताया। इसकी वजह यह है कि आप इनसे एक बार मिलने से मना कर चुके हैं। चूंकि मिलना जरूरी था, इसलिए मुझे यूं, ये कहते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तो क्या ये वो वजीर हैं जिनसे मिलने की बाबत कहा था? मैंने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। जी मैं वही हूं। अब मैं समझ गया हूं कि आपने इनकार क्यों किया था। वो जरूरी था, मुझे राना आरिफ इकबाल ने बता दिया है, इसलिए मैं खुद चलकर आपके पास आया हूं। उसने बड़े धीमे लहजे में यूं कहा जैसे वो शर्मिंदा हो, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तभी मैंने कहा, जी आप फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? आप जो मुल्क कौम के लिए कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप वो कुछ कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते, लिहाजा हम आपसे ही मदद मांग सकते हैं। उसने फिर उसी लहजे में कहा, जी फरमाएं। मैंने तहम्मुल से कहा, पहली बात तो ये है, हमारे ही सियासतदान करप्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुल्क कौम की खिदमत करना चाहते हैं। ये सिस्टम इन्हें कुछ करने ही नहीं दे रहा है। असल में जब मैंने आपसे मिलना चाहा था, उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ शक था। मुझे ऐसी इतलात मिल रही थी कि खास तौर पर पंजाब में बहुत सारी जगहों पर ऐसे नासूर फूट रहे हैं जिनका कोई इलाज नहीं। कोई ऐसी बैरूनी ताकत है जो यहाँ के लोगों को शक में मुब्तला कर रही है। शक में मुब्तला? मैं समझा नहीं। मतलब? मैंने वजाहत के लिए पूछा। मैं समझाता हूँ। ये कहकर वो एक लम्हा को सांस लेने के लिए रुका और फिर कहता चला गया, कोई बैरूनी ताकत हमारे वतन में ऐसा खेल खेल रही है जिससे लोग अपने नजरियात और अफकार में शक शुबा महसूस करने लगे हैं। ये जो शतरंज की नई बसात बचाई गई है, ये कई पहलू रखती है। मोहरे इस बसात पर फैला दिए गए हुए हैं। ये जो आपने बंदा पकड़ा है, मेरे ख्याल में ये एक मामूली प्यादे जैसा है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने पूछा। पिछले 2 महीने से मेरे पास जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि जहां भी इन्हें कोई मुहब्बे वतन मिलता है या इस वतन से कोई गिला शिकवा है किसी भी बंदे को, कि इन लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई वाजिया बात नहीं है, मगर हमें यही समझ आ रही थी कि कोई नया ग्रोह बन रहा है। इसका तरीकाकार इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि कोई एक पैगाम नहीं रखते ये लोग। वो लोग ये नफ्सियात से खेल रहे हैं, किसी को डरा धमका कर, किसी के काम आकर, रुपए पैसे का लालच देकर, जैसे भी वो सिर्फ नजरियात पर बात कर रहे हैं। उसने एक बार फिर पूरे जोश से कहा था। नजरियात पर बात? मैंने बात मजीद समझना चाही तो उसने मेरी तरफ देखा तो उसने पहले से ज्यादा जोश से कहा, अगर कोई ये कहे
कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब्जा कब किया, तो इससे क्या साबित होता है? अगर उसे यूं कहा जाए कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ कब फतह किया, तो इससे क्या जाहिर होता है? बिल्कुल, मैं समझ गया। कब्जा और फतह का फर्क। मैंने उसकी बात समझते हुए कहा, इन दो लफ्जों से पूरी तारीख क्या नीयत तक बदल जाती है। बात वहां जहां पहुंचती है जब रसालते माप ने मक्का फतह किया। जरा सोचें, बात कहां से कहां तक जा पहुंचती है। उसने तहम्मुल से कहा, दिमाग में शक का कीड़ा दाखिल हो जाए तो बुनियादी नजरियात को चाट जाता है, फिर दुरुस्त और गलत की तमीज नहीं रहती और यहीं से तासुब फूटता है। उसने कहा तो वो बोला, यही कुछ वो कर रहे हैं। पंजाब में कई जगहों पर यही चल रहा है। जो जराइम पेशा हैं वो ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। कोई दूसरा बस नहीं चला तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियत पर ओछे तरीके से वार किया जा रहा है। उसने कहा, ऐसा तो फकत भारत ही कर सकता है। खामोश बैठा हुआ जसपाल बोला, हाँ, वहां के पंजाब में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। सिख मत के बारे में शकूक डालने के लिए, उसे बिल्कुल एक नया मत बनाकर पेश करने के लिए उन्होंने इदारे बना दिए हैं। उन्हें सिर्फ खालिस्तान तहरीक से खौफ है। वो वजीर बोला, मैं ऐसा ही एक इदारा तबाह कर चुका हूं। जसपाल ने सुकून से कहा तो वो चौंक गया। बस तो फिर वो लोग इसीलिए आप लोगों को अपनी राह की रुकावट ख्याल कर रहे हैं। वजीर ने बात को समझते हुए कहा, फिर चौंकते हुए बोला, उसे खत्म करना होगा। एक तो ये तो एक नई नस्ल को तबाह कर देंगे, लेकिन इससे पहले भी ये अफरा तफरी भी मचाएंगे ताकि ये साबित कर सकें कि वो काम कर रहे हैं। जसपाल ने जवाब दिया तो मैंने कहा, हम ही इन्हें खत्म करेंगे। मैं इनकी जड़ तक पहुंचूंगा। मुझे आप थोड़ा सा वक्त दें। बिल्कुल ठीक है, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप मुझे मिलें, फिर इस काम का आगाज करते हैं। उसने कहा और उठ गया। मैंने उन्हें रुकने को नहीं कहा। हम इकट्ठे पोर्च तक आए। वो अपनी राह हो गए और हम नूर नगर चल दिए। नया पैराग्राफ। आधी रात हो चुकी थी जब हम नूर नगर हवेली पहुंचे। जैसे ही पोर्च में गाड़ी रुकी, मुझे एहसास हो गया था कि घर में हमारा इंतजार हो रहा है। हम लाउंज में आए तो सोहनी सोफे पर बैठी हुई थी। वो हमें देखते ही खड़ी हो गई। वो जसपाल से मिली और उसका हाल अहवाल पूछा, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, फ्रेश होकर आ जाएं टेबल पर, मैं खाना लगाती हूँ। ये कहकर वो लाउंज से निकल गई। हम तीनों फ्रेश होकर टेबल पर बैठे ही थे कि रोनीत कुंवर के साथ शम्स और कमर भी आ गए। उनके साथ ही अरविंद सिंह भी सीढ़ियां उतरता हुआ दिखाई दिया। ओ, तुम सब लोग भूखे हो? जसपाल ने खुशगवार हैरत से पूछा तो रोनीत ने कहा, सोहनी भाभी ने कहा कि तुम लोग आ रहे हो तो हमने कहा इकट्ठे ही खाना खाएंगे। अरविंद के पास बैठते ही पता ही नहीं चला इतना वक्त गुजर गया। हाँ, बहुत दिनों के बाद ही मिले हैं ना तीनों। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, वैसे जमाल वीरे नो, जो इनके बारे में सुना था ये इनसे बढ़कर हैं। अभी ये बातें चल रही थी। रोनीत कंवर ने इन दोनों की तारीफ की तो सोहनी के साथ मुलाजिम खाना ले आए। खाने के दौरान बातें चलती रहीं। हम कहाँ गए थे ये बताते रहे। दिल नहीं कर रहा सोने को, इसलिए चाय लेकर लाउंज में ही बैठ गए। तभी सोहनी ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम सबको सुबह एक सरप्राइज देने जा रही हूँ, अगर रोनीत कंवर को इस पर एतराज ना हो तो। इस पर रोनीत कंवर खामोश रही तो सोहनी ने दबे दबे जोश से कहा, सुबह तानी के साथ रोनीत कुंवर और अरविंद सिंह की शादी भी हो रही है। वाह, ये तो कमाल हो गया। जसपाल ने हैरत से कहा, दोनों राजी हैं ना? मैंने अपनी तमाम हुज्जत के लिए पूछा। वैसे मैं समझ गया था ये बहुत राजी हैं, हमें पता ही नहीं चला और इन दोनों के दरमियान चक्कर चल गया। सोहनी ने कहा, एक और काम भी कर देंगे, लगे हाथ हूं। अरविंद ने सबकी तरफ देखकर सोहनी से कहा, वो क्या? सोहनी ने पूछा, ये जो अपनी महविश है ना, इसकी शादी अपनी फहीम से करवा दे, मैं गवाह हूं। उसने इस कदर बेचारगी से कहा कि सभी हंसती है। चल सुबह इनका काम भी कर देते हैं, जसपाल ने कहा तो सभी हंसती है। अच्छा, अब सब सो जाएं, सुबह बहुत सारे काम करने हैं। ना भाभी, ना हमारे वीर को ले जाना चाहो तो ले जाओ, हम तो भी जागेंगे, रोनीत कंवर ने कहा तो सोहनी कुछ
बोले बगैर होंठों में हंसी दबाए उठ गई। वो लाउंज से चली गई तो मैं भी उठ गया और जाते वक्त जसपाल को कह गया कि ख्याल रखना। मैं अपने बेडरूम में गया तो सोहनी अलमारी में से कपड़े निकाल रही थी। मैं चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर बेड पर बैठ गया। वो मेरे पास आ गई। तब मैंने उसे पूछा, रुनीत और महविश की शादी के बारे में बात तो हो गई, इनके बारे में कोई तैयारी की है तुमने? मैंने सब तैयार किया हुआ है, आपको परेशानी नहीं होगी। उसने कहा, चलो अच्छी बात है। मैंने इत्मीनान से कहा, अगर आप आराम करना चाहो तो सो जाएं। उसने बड़े प्यार से कहा, तुम अगर पास हो तो फिर नींद का क्या सवाल। मेरे यूं कहने पर वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। हम काफी देर तक बातें करते रहे, फिर मुझे नींद आ गई। सपीदा सहर नमूदार हो रहा था कि मेरी आंख खुल गई। सोहनी जाए नमाज पर बैठी हुई थी। उसका अंदाज बिल्कुल अम्मा की तरह था। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उठकर अम्मा के कमरे की जानिब चल पड़ा। वो अभी तक जाए नमाज पर बैठी हुई थी। मैं जाकर उनके पास बैठ गया, जैसे मैं बचपन में बैठा करता था। उन चंद लम्हों में मेरा सारा बचपन मेरी आंखों के सामने गुजर गया। क्या दिन थे वो भी। अम्मा मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। हमारे दरमियान बात नहीं हो रही थी, लेकिन उनके हाथ का लम्स मुझे बता रहा था। वो काफी बातें कर रही थी। एक नई तवानाई मेरे अंदर आ गई थी। मुझे पता था अभी इनके मजीद मामूलात हैं, इसलिए मैं वहां से उठ गया। सूरज निकलते ही हवेली में चहल पहल शुरू हो गई। सबसे पहले मैंने सिक्योरिटी बारे ध्यान दिया। जसपाल ने सब कुछ देख लिया तो मुतमईन हो गया। दोपहर से जरा पहले मेहर खुदा बख्श आ गए। उनके साथ चंद लोग थे। वो मिले तो रोही का सारा जमाना याद आ गया। तानी उनसे गले लगकर बड़ी देर तक रोती रही। कुछ देर बाद वो उनसे अलग हुई तो सोहनी उसे तैयार करने के लिए ले गई। शादी की तकरीब का एहतमाम लॉन में किया गया था, जहां एक बड़ी सारी स्क्रीन लगी हुई थी। इसका एहतमाम अकबर और जोया ने किया था। वो अली सुबह कराची से आ गए थे। तकरीबन 11 बजे के करीब चौधरी इशफाक दूल्हा बना पंडाल में आ गया और उसके साथ ही वो एक सोफे पर बैठ गया। ये तकरीब हर उस जगह देखी जा रही थी जो हमसे मुतल्लिक था। इसके साथ महविश और फहीम को बिठा दिया गया। तानी और महविश की तरफ से मेहर खुदाबंश वली बना तो मौलाना साहब ने बारी बारी इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया। मुबारक सलामत का शोर उठा। वो शोर जरा कम हुआ तो अरविंद सिंह और रुनीत कंवर की बारी आई तो उनका रुख इस बड़ी सारी स्क्रीन की तरफ कर दिया गया जो खास उसी मकसद के लिए लगाई गई थी। उस पर सबसे पहले हरप्रीत कंवर नमोदार हुई। वो कैमरे की तरफ देखकर कह रही थी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सबको धन्यवाद। मेरी तरफ से इशफाक, तानी, महविश और फहीम को मुबारकबाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अरविंद वीद की शादी हो रही है। रुनीत कंवर, बड़ा दिल कर रहा है तू मेरे पास होती, मैं तुझे दुल्हन बनाती, पर मैं खुश हूं। मेरी बहन सोहनी वहां मौजूद है, कोई कमी नहीं होगी, और जमाल वीरा वहां पर है। मैं उस वक्त ओगी के गुरुद्वारे में हूं। मेरे साथ ज्ञानी है और ओगी के दोस्त। तुम दोनों की शादी ज्ञानी करवाएंगे। ये कहकर उसके कैमरे का रुख बदल गया। स्क्रीन पर एक ज्ञानी बैठा हुआ था और उसके आगे ग्रहण साहब थी। वो हाथ जोड़े स्क्रीन पर देख रहा था। रस्म के मुताबिक रुनीत और अरविंद आ गए। वो ग्रहण साहब के आगे झुक के तब ज्ञानी ने शादी वाले अश्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। वो दोनों समझ रहे थे। जसपाल सिंह उनके साथ था। उसने अरविंद की पगड़ी का पल्लू रुनीत के आंचल के साथ बांध दिया। वो फेरे लगाने लगे। ज्ञानी पढ़ता रहा। कुछ देर बाद उनकी शादी का भी ऐलान हो गया। सोहनी ने सारी रस्में समझी हुई थी। वो इनके साथ रस्में निभाने लगी। उसकी सिर्फ यही नीयत थी कि उन्हें यहाँ अकेलापन महसूस ना हो। स्क्रीन पर हरप्रीत कुंवर के साथ फुप्पो कुलजीत कुंवर भी थी। कुछ देर बाद स्क्रीन भी साफ हो गई। नूर नगरवाल ने ऐसी शादी पहली बार देखी थी। घर में रस्में होती रहीं, इसमें मेहर खुदाबख्श के पास जा बैठा। इनके साथ बहुत सारी बातें चलती रहीं। कुछ देर बाद जसपाल भी आकर बैठ गया। दोपहर तक यही सिलसिला चलता रहा और उसके बाद मेहमान जाने लगे। मेहर खुदाबख्श भी चले गए। जब शाम उतरी तो हवेली में वही महसूस अफराद थे। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।